नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा के लिए नहीं जा रहा, जयशंकर ने इस्लामाबाद में आगामी SCO शिखर सम्मेलन पर कहा। पैगंबर के खिलाफ घृणास्पद भाषण पर FIR के बाद गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती हिरासत में। क्रिकेटर से अभिनेता बने सलील अकोला की मां मृत पाई गई, गला कटा हुआ मिला। इंडिगो नेटवर्क आउटेज से देश भर में बड़ी फ्लाइट देरी। RBI ने 10 के सिक्के पर जागरूकता अभियान शुरू किया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वो शंघाई सहयोग संगठन SCO के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद की आगामी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के साथ कोई संवाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, यह यात्रा एक बहुपक्षीय आयोजन के लिए है। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा। मैं वहां SCO का एक अच्छा सदस्य बनने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा। उन्होंने आगे जोड़ा, लेकिन आप जानते हैं, चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी अनुसार व्यवहार करूंगा। S जयशंकर ने पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए SAARC पहल के पटरी से उतरने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। At the moment, SAARC is not moving forward. We have not had a meeting of SAARC for a very simple reason, that there is one member of SAARC who is practicing cross-border terrorism, at least against one more member of SAARC, maybe more. Now, when if you're all sitting together and cooperating, and at the same time, this kind of terrorism goes on so openly, it actually poses a challenge for us. That do you ignore it and go ahead, and in which case you are normalizing it, you are accepting that this is a legitimate tool of statecraft. And I think at some point we came to the decision that we should not do this. That terrorism is something which is unacceptable, and if despite a global view of it, if one of our neighbors continues to do it, then there must be a cost to them. It cannot be business as usual in the SAARC. And that is the reason why actually SAARC meetings have not happened in recent years. But I want to make an equally important point. Because SAARC has not happened doesn't mean regional activities have stopped. In fact, I would argue that the last 5 or 6 years, we have seen far more regional integration in the Indian subcontinent than we have seen since the partition of India. That if you look today with Bangladesh, with Nepal, with Bhutan, with Myanmar, with Sri Lanka, where I came, you have railway lines being restored, you have roads being rebuilt, you have electricity grids being built, countries export and import power, you have fuel lines. Our refineries today give fuel to Nepal and to Bangladesh. You have ferries, you have, fertilizer supplies. So, and if you look, medical visas, the way our hospitals are linked. So, I actually would say that what is happening in the neighborhood, and it's happening because we are espousing this policy called neighborhood first. Neighborhood first means we are the biggest country. We must put in the maximum resources. We should not look to say, are they doing something equal to us? Because they are smaller. They will not be in a position to necessarily reciprocate. So we need to take that as our primary responsibility and push that. महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शुक्रवार रात एक भीड़ द्वारा पथराव किए जाने से 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये भीड़ एक हिंदू संत के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर केस दर्ज करने की मांग कर रही थी, पुलिस ने बताया। पुलिस ने बाद में गाजियाबाद के हिंदू संत यति नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ उनके पैगंबर पर दिए गए बयान को लेकर मामला दर्ज किया। घटना में कम से कम 10 पुलिस वैन क्षतिग्रस्त हो गई। पथराव नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ था। इस मामले में 1200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें से 26 लोगों की पहचान की गई, एक अधिकारी ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्थिति को अच्छी तरह से संभाला और भीड़ को तितर-बितर किया। अतिरिक्त पुलिस बल को भी मौके पर भेजा गया। अमरावती शहर के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन परिसर में कल रात में
कंप्लेन देने के लिए एसडीपीआई के कुछ कार्यकर्ता आए थे और जब प्रक्रिया जो शुरू हुई थी एफआईआर दर्ज कराने की, उसी दरमियान कुछ लोगों ने ज़्यादा लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया और घोषणाबाजी करके माहौल अशांत किया और पुलिस स्टेशन पे आए कुछ लोगों ने पथराव किया और पुलिस अधिकारियों पे, कर्मचारी पे पत्थरबाजी की, जिसके वजह से वहाँ पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण वातावरण हुआ था। पुलिस ने सभी जो दंगाई जमा हुए थे उनको वहाँ से बाहर निकाला और एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, वहाँ पर ज़्यादा फोर्स भेजी गई और अभी वहाँ पर पीसफुल वातावरण है। कोई अफवाह पे किसी विश्वास न करे, ऐसे ही मैं मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा हूँ। सभी जगह शांतता है और बट कोई भी कानून अगर हाथ पे लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, ये मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए सभी से आह्वान करता हूँ कि आपका जो भी निवेदन है वो पुलिस स्टेशन में दीजिए, कानूनी कार्रवाई होगी। दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस वाहन में हिरासत में लिया गया। शुक्रवार रात मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। यदि नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ 4 अक्टूबर शुक्रवार को गाजियाबाद में कथित रूप से घृणास्पद भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के अनुसार महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने 29 सितंबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले कथित बयान दिए गए थे। संसद की लोक लेखा समिति पीएसी ने देश के शीर्ष नियामक प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला किया है और 24 अक्टूबर को सेबी और ट्राई के प्रमुखों को बयान के लिए बुलाया। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग और दूरसंचार मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी इस प्रमुख संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए कहा। सूत्रों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी के प्रतिनिधि इस पैनल के सामने पेश हो सकते हैं। ये बैठक सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ अमेरिकी शोध संस्थान हिंडनबर्ग द्वारा चलाए गए आरोपों के बीच हो रही है, जिसमें उनके अडानी समूह से कथित संबंधों का आरोप लगाया गया। इससे पहले अगस्त में कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया था और दोनों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। पूर्व क्रिकेटर सलील अंकोला की मां शुक्रवार को पुणे के उनके फ्लैट में मृत पाई गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके गले पर चोट के निशान थे जो स्वयं द्वारा लगाए गए प्रतीत होते हैं। 77 वर्षीय माला अशोक अंकोला का शव दोपहर में प्रभात रोड स्थित उनके फ्लैट में मिला। ये मामला तब सामने आया जब उनकी नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब ना मिलने पर परिवार वालों को सूचित किया। जब दरवाजा खोला गया तो महिला मृत पाई गई और उनका गला कटा हुआ था। प्रारंभिक जांच में ये चोटें आत्म नुकसान लग रही हैं। हालांकि हम सभी कोणों से मामले की जांच कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 संदीप सिंह गिल ने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार थी। सलील अंकोला ने 1989 से 1997 के बीच भारत के लिए टेस्ट और 20 एक दिवसीय मैच खेली। बाद में उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अभिनय करना शुरू कर दिया। भारत की सबसे बड़ी कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो को शनिवार को एक बड़ी नेटवर्क आउटेज का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे देश में उड़ान संचालन और ग्राउंड सेवाओं में व्यापक व्यवधान हुआ। इस तकनीकी समस्या के कारण यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे। कई लोग ना तो अपनी फ्लाइट में सवार हो पाए और ना ही टिकट्स बुक कर पाए, जिससे लंबी देरी और यात्रियों में बढ़ती नाराजगी देखी गई। इस आउटेज ने इंडिगो की वेबसाइट और बुकिंग सिस्टम सहित कई महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रभावित किया। नाराज यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें साझा की। एक यूजर ने बेंगलुरु के टर्मिनल 1 पर देरी की रिपोर्ट देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, नए विमान खरीदना अच्छा है लेकिन ग्राउंड सेवाओं में सुधार क्यों नहीं करते। एक अन्य यात्री ने टिप्पणी की, हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन जैसा दिख रहा है, सिस्टम फेल होने के कारण, भारी भीड़ के कारण। इंडिगो ने एक बयान में समस्या को स्वीकार किया और इसे अस्थायी सिस्टम धीमापन बताया, जिनके उनके नेटवर्क को प्रभावित किया। एयरलाइन ने कहा, इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को चेक इन और लंबी कतारों जैसी सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ा। इंडिगो ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि उनकी टीम सामान्य स्थिति बहाल करने और यात्रियों की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कोचिंग क्लास जाने के लिए घर से निकली एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। एक पुलिस कैंप में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जबकि भाजपा ने दावा किया है ये दुष्कर्म और हत्या का मामला है और राज्य में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही अगस्त में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कथित रूप से लापरवाही बरतने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना के महिषमारी में कोचिंग क्लास के लिए निकली, लेकिन घर नहीं लौटने पर उसके परिवार ने रात में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे उसका शव एक खेत में मिला, जिस पर कई चोटों के निशान थे। शव मिलने के बाद इलाके के नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस कैंप में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। अमेठी में दलित शिक्षक और उसके परिवार की हत्या के मुख्य आरोपी 26 वर्षीय चंदन वर्मा को शनिवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ तब हुई जब उसे अपराध में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था। अमेठी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिंद्र कुमार ने बताया कि चंदन अब खतरे से बाहर है और स्थानीय सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज जारी है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन के दौरान चंदन ने सब इंस्पेक्टर मदन कुमार सिंह से पिस्तौल छीनने की कोशिश की और उन पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो चंदन के दाहिने पैर में लगी। घटना के बाद चंदन को तिलोई सीएचसी में भर्ती किया गया। गुरुवार को अमेठी में एक दलित शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बेटों की निर्मम हत्या चंदन द्वारा की गई थी। वो शिक्षक की पत्नी पूनम भारती से प्रेम करता था, जिसके चलते ये घटना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के सहयोग से गुरुवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 10 के सिक्के को स्वीकारने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2 दिवसीय जन जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि व्यापारियों, छोटे व्यवसायों और आम जनता में 10 के सिक्के स्वीकार करने के लिए अनिच्छा देखी जा रही है। एसबीआई हैदराबाद सर्कल ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा, इस अनिच्छा का कारण फर्जी संदेशों से उत्पन्न संदेह है, जो इन सिक्कों की वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं और इसे बेईमान तत्वों द्वारा फैलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक एसबीआई शाखा कम से कम 10 खुदरा ग्राहकों, पीएम स्वनिधि लाभार्थी, छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर से संपर्क कर जागरूकता पैम्फलेट लाने और उनके प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थानों पर 10 के सिक्कों की कानूनी वैधता की पुनः पुष्टि करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस अभियान के तहत एसबीआई सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक राजेश कुमार ने हैदराबाद की कोठी में मुख्य शाखा पर जनता को 10 के सिक्के वितरित किए। हैदराबाद सर्कल की सभी एसबीआई शाखाओं ने सिक्का मेलों का आयोजन किया और 10 के सिक्के वितरित किए। भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा के लिए नहीं जा रहा, जयशंकर ने इस्लामाबाद में आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन पर कहा। पैगंबर के खिलाफ घृणास्पद भाषण पर एफआईआर के बाद गाजियाबाद में यतीम नरसिंहानंद सरस्वती हिरासत में। क्रिकेटर से अभिनेता बने सलील अंकोला की मां मृत पाई गई, गला कटा हुआ मिला। इंडिगो नेटवर्क आउटेज से देश भर में बड़ी फ्लाइट देरी। आरबीआई ने 10 के सिक्के पर जागरूकता अभियान शुरू। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-Made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।